Hello, Bacho. Let's hit a given question. The question says figure shows in cross section a wall consisting of four layers with thermal conductivities K1 as 0.06 watt per meter Kelvin. Option K3 is 0.04 watt per meter Kelvin. K4 as 0.10 watt per meter Kelvin. The layer thicknesses are L1 equals to 1.5 centimeter, L3 2.8 centimeter, L4 as 3.5 centimeter. The temperature of interface is as shown in figure. Energy transfers through the wall is in a steady state. The temperature of the interface between layers 2 and 3 is option A 11 degrees Celsius, option B 8 degrees Celsius, option C 7.2 degrees Celsius, option D 5.4 degree Celsius. So to understand this question, we need to understand about the concept of thermal conduction through a rod, or we can say through a layer basically. So we will consider a case. Let's say we have a rod, okay, and this two rod are having a temperature T1 and T2 जो interface basically इनके जो end points है उनका temperature T1 T2 and T1 is greater than T2. So we can say at steady state same amount of heat flow will be there between every cross section, because steady state का मतलब ही ये है, we need to understand it. Steady state का मतलब है of temperature of cross section, temperature of every cross sections is constant with respect to time, is constant with respect to time. So this is what the thing we need to keep in mind. So जब temperature constant हो जाएगा तो जो same amount of heat होगी वही flow हो जाएगी हर जगह से, ठीक है. तो and if we consider L to be the length of the rod, A to be the area of cross section, so we can write Q will be equals to K A delta T, that is the temperature difference, into time T for which the heat is flowing upon L. So ये expression आता है thermal conduction का, where K is thermal conductivity, right. अब यहाँ से we can modify this, that is Q by T को हम लिख सकते हैं H, which is the heat flow rate, can be given by the expression K delta T A upon L, and further it can also be written as delta T upon L by Ka. अब L by K को हम कहते हैं thermal resistance, so this can further be written as RT, that is thermal resistance, ठीक है. So this is the basic thing that we need to keep in mind for solving such kind of questions. So यहाँ पे we can see कि एक ही wall है जिसके चार layer हैं, so we can say area of cross section जो होगा वो same होगा चारों का, ठीक है. So this will be the case. अब यहाँ से we need to define the temperature between the layers. Let's say हम मान लेते हैं ये temperature T1 है, ये temperature between the layer is T2, it is T3 मान लेते हैं, एंड ये फाइनली इट इज T4 जो कि गिवन भी है -10 डिग्री, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट्स डायरेक्टली. सो वी नो फॉर स्टेडी स्टेट H1 विल बी इक्वल्स टू H2 विल बी इक्वल्स टू H3 विल बी इक्वल्स टू H4, ठीक. तो हम चारों के लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे. पहले H1 वी कैन राइट हीट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, सो 30 माइनस T1, ठीक है. और T1 भी हमें टू बी प्रिसाइज देखा है तो 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है. L अपॉन के, L1 अपॉन के, L1 अपॉन के, ए तो कांस्टेंट है तो हर जगह से हम नहीं लिखेंगे इसको, इट कैन बी कैंसल्ड आउट. सो यहाँ से वी कैन से जस्ट अब सेकेंड के लिए लिखेंगे T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय L2 अपॉन K2, एंड दैट इज इक्वल्स टू T2 माइनस ऑफ T3 डिवाइडेड बाय L3 अपॉन K3, ठीक है. एंड फाइनली वी कैन राइट दिस हैज टू बी T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय L4 अपॉन K4, ठीक है. सो यहाँ पे वी नीड टू चूज वाइसली के कौन से इक्वेशंस को हमें चूज करना है जो कि अननोन, जहाँ पे जितने गिवन है हम पहले तो अननोन डेटास निकालने की कोशिश करते हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ T2, राइट. तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, और वी विल कंपेयर इट विद, क्योंकि फर्स्ट में हमें सब कुछ गिवन है T1 L1 K1, राइट. इसको हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे इक्वेशन लास्ट वाले से, तो हमें T3 मिल जाएगा इससे, ठीक है ना. तो लेट्स डू इट. सो 30 माइनस T1 अगर देखें तो 25 है, इंटू K1 अगर देखें तो इट इज 0.06 डिवाइडेड बाय, हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं पहले. L1 गिवन है हमें 1.5, दैट 10⁻², एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब हम लास्ट वाले को देख रहे हैं, सो T3 ऐसे ही रखते हैं हम, प्लस T4 हमें 10 गिवन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस गिवन था एक्चुअली, डिवाइडेड बाय लेंथ की अगर हम बात करें L4, सो 3.5 10⁻² मीटर्स इंटू K4 इज 0.1, ठीक है. तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 5
इंटू 0.06 इंटू 3.5 10⁻², तो बोथ साइड से हम कैंसिल कर देंगे पहले, divided by 1.5 into 0.1 and that will be equals to T3 plus of 10. तो T3 की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस. सो अब T3 हमें मिल चुका है. अगर हम अब इन दो एक्सप्रेशन को कंपेयर कर दें, सेकेंड लास्ट और लास्ट, तो हमें T2 मिल जाएगा, राइट? तो वी विल डू इट. वी कैन से नाउ T2 जो हमें चाहिए माइनस ऑफ T3 हमें मिल गया, प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय K3. अगर हम देखें तो K3 भी गिवन है 0.04 डिवाइडेड बाय L3. अगर हम देखें तो L3 इज ऑल्सो बीन गिवन 2.8 10⁻², एंड दैट विल बी इक्वल्स टू T3 अगेन हमारे पास है -3 और ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय L4 इज 3.5 10⁻², 0.1. सो अब इसको सॉल्व करेंगे हम एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस T2. तो वी कैन से T2 प्लस T3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे हम, तो ये बचेगा -13 या फिर -1 माइनस ऑफ 0.13 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 0.04. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, वी डिड अ स्लाइट मिस्टेक. ये होगा +10 होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था और माइनस ऑलरेडी है, तो +10, सो ये हो जाएगा 7. ये 2.8 तो सही था. 10 - 3 विल बी 7, 7.7 हो जाएगा ये. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास एंड इट विल बी प्लस हो गया. सो 14 - 3 will be 11. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.